Hello everyone. Today we will discuss Armstrong number program. This is the source code for Armstrong number. Before that, we already discussed about the logic behind the Armstrong number. One example of Armstrong number is number 153. So what we can do, we are separating the digits of this particular number, that is 1, 5 and 3. Then we are taking cube of every digit, and then we are adding it. So if you take the cube of 1 is 1, cube of 5 is 125 and cube of 3 is 27. If you add up all these three numbers, then you will get the value 153. That is the original number. So cube of all digits or individual digits is going to be equal to a original number. If this is happened, then that number is called as the Armstrong number. So it is applicable for the 153. Hence, 153 is a very special number, and it is also called as a Armstrong number. It will not applicable for number 121 or number 123 or any other number you can take it. So this is the speciality of a Armstrong number. Generally, you will get a Armstrong number in very rarely. So similarly, you can get a Armstrong number in a 4-digit number also, but it is very rare to get such type of number. Okay. So in this particular program code, what we are doing it, let us try to see it. Okay. So we will keep this part in comment section. This is in comment. So this is the multi-line comment. In a Java, we can give a multi-line comment in this way, in this format. Okay, we have already seen it. If you want to give a single line comment, then you can give it in this way. Okay, we have already given comments in case of C programming also. Okay, it is in the same fashion. Okay, it is also applicable in a Java. So what happens? We will take the input from the user. Which number that particular user wants to check for a Armstrong condition. So user will input a number. It can be 153, it can be 151, it can be 101. Okay, it depends upon the client or the user. We will take that input by using this scanner functionality, right? So we are creating an object of scanner class, that is a scan. Now you are very much aware about how to create an object of a class by using this new operator. So new operator, what is the role of new operator? The role of new operator is it allocates the memory, right? So it allocates the memory, and we are creating this scan object. By using this scan object, we are taking the number, hence the method is nextInt. We have discussed about this method number of times, right? So that number which is given by the user is stored in an integer variable, and the integer variable is num. We have already declared that variable at this line. Int, we have declared more than one variable, so we have declared x, num, num1 and sum. It is possible. Okay. For x, num and num1, we are just declaring it. We are not assigning the value, but for variable sum, we are declaring it as well as we are assigning some value, default value. So it is possible. At a single line only, you can do it. It is possible. Provided all variables should be of the same data type. If you want to declare or define any variable of a different data type, for example, you want to take variable y of data type double, then you have to use it differently. You cannot do this initialization at a single place. Okay, but if you want to declare or define variables of a same data type, then you can do it. Every variable is separated by using a comma, and at the end we are having a semicolon. So semicolon indicates it is the end of that line. You know about it. In Java programming, we are using a semicolon. In C also, we are using a semicolon to indicate end of that particular line. So it is known to you. So the number is stored in a num variable. The value which is given by the user or client is stored in a num variable. तो num में क्या है? हमारा नंबर है जिसको हमें टेस्ट करना है. जिस नंबर के लिए हम आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक लिख रहे हैं, वो नम के वो वैल्यू कहाँ पर है? नम वेरिएबल में है. ठीक है. बाद में हमने एक num1 वेरिएबल भी लिया है जिसमें num की वैल्यू कॉपी करके रखी है. अब ये क्यों कॉपी की है हम देखेंगे.
आपको पता चलेगा, ये लॉजिक खत्म होने तक आपको ये पता चलेगा। तो फॉर द टाइम बिंग याद रखो कि नम में हमने वैल्यू ली, लेट अस सपोज वैल्यू 153 थी, और वही वैल्यू हम नम वन में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, आपका इसका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। नाउ वी प्रोसीड टू अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हमने कंडीशन दी है। व्हाइल लूप का फॉर्मेट हर एक स्टूडेंट को अब पता है, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस व्हाइल लूप इन अ सी प्रोग्राम, राइट। तो व्हाइल में क्या होता है, कंडीशन होती है। व्हाइल में कुछ इनिशियलाइजेशन वगैरह नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। तो इनिशियलाइजेशन यदि करना ही है तो व्हाइल के पहले करते हैं। तो हम व्हाइल में कौन सा नंबर, सॉरी, व्हाइल में हम क्या यूज कर रहे हैं, व्हाइल में हम num1 यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, num1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, num1 यूज कर रहे हैं, मैं ये यूज बताऊंगा इसका। तो फॉर द टाइम बिंग नम की वैल्यू यदि 153 होगी तो num1 की वैल्यू भी कितनी होगी, 153 होगी। ठीक है, तो यहां तक तो सबको क्लियर है, num1 की भी वैल्यू 153। तो हमने एक कंडीशन दी है, तो num1 को हमने इनिशियलाइज करके ही लिया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया था और यहाँ पर इनिशियलाइज किया। कैसे इनिशियलाइज किया, num1 में num की वैल्यू कॉपी कर दी, तो num की जो भी वैल्यू रहेगी वो num1 में आ जाएगी। तो num1 को इनिशियलाइज करना मतलब क्या, डिक्लेयर तो किया है हमने, num1 कौन से डेटा टाइप का है, तो इंटीजर डेटा टाइप का है। तो डिक्लेरेशन तो हुआ है, इनिशियलाइजेशन करना मतलब क्या है, वैल्यू असाइन करना। तो वैल्यू भी हमने असाइन कर ली। तो num1 की वैल्यू क्या है, 153 है। अब हम व्हाइल के पास आते हैं, कंडीशन दी है हमने, num1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 153 इज ग्रेटर देन 0। यस, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, 153 mod 10 करेंगे। तो 153 को यदि 10 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आपको x में क्या करना है, स्टोर करना है। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू इवेल्युएट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करनी होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अननोन क्वांटिटी होती है, राइट हैंड साइड में नोन क्वांटिटी होती है। आपको पता है, हमने ये डिस्कस किया है अभी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 153 mod 10, रिमाइंडर रहेगा 3, तो x की वैल्यू बनेगी 3। ठीक है, ये वैल्यू का हम यूज करेंगे। हमने x को क्या किया है, पहले ही डिक्लेयर करके रखा है, वो इंटीजर डेटा टाइप है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। बाद में हम नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, लूप के अंदर है सम इक्वल टू सम प्लस, तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब क्या होगा कि सम की वैल्यू हम चेंज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो अननोन है, राइट हैंड साइड में नोन क्वांटिटी रहती है। तो सम की जो अभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इसके पहले अवेलेबल है, वो वैल्यू पहले हम लेंगे। तो सम की कौन सी वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, 0 है, सम की वैल्यू ये अवेलेबल है। तो 0 प्लस एक्स इंटू एक्स करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर 3 आई थी, तो 3 इंटू 3 करेंगे। तो क्या आएगा आंसर, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो 0 प्लस 27, 0 प्लस 27 क्या आता है, 27 ओनली। तो सम की वैल्यू क्या बनी, 27। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। याद रखो सम की वैल्यू अभी 27 बनी है। नेक्स्ट लाइन पर जाने के बाद num1 को हमने फिर से क्या किया है, चेंज किया है। लेफ्ट हैंड साइड में num1 है, इक्वल टू num1 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो num1 की वैल्यू क्या है, अभी भी 153 है। यहाँ पर हमने जब मॉड्यूलो डिवीजन किया था तो रिमाइंडर आया था, लेकिन num1 चेंज नहीं हुआ था, num1 जैसे कि वैसा ही था, केवल रिमाइंडर को हमने x वेरिएबल में स्टोर किया था। सो स्टिल हमारा num1 क्या है, 153 है। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है आपके लिए, 153 डिवाइड बाय 10। अब ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर नहीं देखेंगे हम, डिवाइड करते हैं तो क्या देखते हैं, नॉर्मल डिवीजन है। ओके, डिवीजन का आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो 153 डिवाइड बाय 10 करने के बाद क्या आएगा आंसर, 15.3, बराबर ना। तो 15.3 में 15 ये इंटीग्रल पार्ट है, 0.3 क्या है हमारा, फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जब num1 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो num1 के अंदर केवल इंटीग्रल वैल्यू आ सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। तो जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिली है 15.3 में, 0.3 हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है। जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू मिली है उसे हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, और केवल इंटीग्रल वैल्यू को लेंगे। इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 15। तो num1 की वैल्यू क्या बन गई, 15। अब num1 चेंज हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चेंज होने के बाद हम फिर से व्हाइल लूप के पास जाते हैं, क्योंकि व्हाइल लूप के स्टेटमेंट तो खत्म हो गए, अब व्हाइल के पास जाएंगे फिर से कंडीशन के पास। सो num1 इज ग्रेटर देन 15, num1 अब क्या है, 15, 15 इज ग्रेटर देन 0, यस, अभी भी कंडीशन ट्रू है, व्हाइल लूप के अंदर आएंगे। जब तक व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हम व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए व्हाइल लूप ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है।
ये पहले ही आपने देखा होगा सी में एंट्री कंट्रोल क्यू, हम पहले कंडीशन चेक करते हैं और बाद में लूप में आते हैं। तो एग्जिट कंट्रोल क्या होता है, जैसे आप बाहर निकलते हो तभी आपको चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको 14 दिन 15 दिन जो भी होता है उनका टाइम होरिजॉन, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है और उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है, वॉट एवर देयर आर नंबर ऑफ मेजर्स दे आर टेकिंग इट। ठीक है, इसके बाद 14 दिन के बाद बाहर निकलते समय क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्या करते थे, टेस्ट करते थे, अभी उन्होंने वो कंडीशन निकाल दी, लेकिन पहले टेस्ट करते थे। तो बाहर निकलते समय क्यों करते थे, क्योंकि हमें देखना था कि ये कोविड निगेटिव है या नहीं, क्योंकि उसकी बीमारी ठीक हो गई है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल। बाहर निकलते समय हम कुछ चेकिंग कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी आप यदि मुंबई से दिल्ली गए तो दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आपकी चेकिंग की जाती है, तो दिल्ली में बाहर निकलते समय चेकिंग होती है, तो एग्जिट कंट्रोल। मुंबई में आप फ्लाइट पकड़ने के पहले यदि आपकी चेकिंग होती है तो एंट्री कंट्रोल। ये बहुत इजी है ये टर्म्स। वाइल लूप क्या करता है, एंट्री लेते समय ही कंडीशन को चेक करता है, इसलिए एंट्री कंट्रोल, एंट्री करते समय। तो 15 इज ग्रेटर देन 0, यस, अंदर आएंगे हम। 15 mod 10, 15 mod 10 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 15 mod 10 का 5। मॉड्यूलो डिवीजन होगी तो भी आपको डिवीजन ही करनी है, लेकिन मॉड्यूलो डिवीजन में आपको डिवीजन का आंसर नहीं चाहिए, उस डिवीजन का रिमाइंडर चाहिए। तो 15 mod 10 करने के बाद 10 वन सा क्या आता है, 10 ही आता है, 5 बचता है। ठीक है, जो भी रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हम x में स्टोर करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेटमेंट में हम num1 को चेंज नहीं करते, num1 15 ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो भी रिमाइंडर आता है वो एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो x की वैल्यू क्या बनी, 5 बनी। अब सम, नया सम बनाएंगे, पुराना सम क्या था 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125, 125 प्लस 27 चल रहा है। अभी एडिशन ही करनी थी हमें, हर एक डिजिट के क्यूब की एडिशन करनी थी। तो पहला डिजिट था 3, उसका क्यूब आया 27। उसके बाद उस सम में हमने क्या किया, नया जो हमारा डिजिट मिला है 5, उसका क्यूब निकाला और उस क्यूब को एडअप किया। तो 27 प्लस 125 जैसे चाहिए वैसे हो रहा है अभी 152, 152 ये नई वैल्यू बन गई किसकी, सम की। इसके बाद हम आगे वाले स्टेटमेंट पर जाएंगे। ये स्टेटमेंट में और फर्स्ट स्टेटमेंट में चेंजेस है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो भी आंसर आता है वो एक्स वेरिएबल में स्टोर करते हैं और मॉड्यूलो डिवीजन करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट में जो भी आंसर आता है वो num1 में ही स्टोर करते हैं और यहाँ पर हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर num1 की वैल्यू कितनी है, 15, 15 डिवाइड बाई 10 आंसर आता है 1.5। 1.5 में 0.5 फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसे निकाल देंगे। इंटीग्रल पार्ट को हम स्टोर करेंगे num1 में, तो num1 की वैल्यू क्या बनी, 1 बन गई। अब फिर से लूप के पास जाएंगे, वाइल लूप के पास, कंडीशन के पास। num1 इज ग्रेटर देन 0, यस, num1 की वैल्यू है 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, 1 इज ग्रेटर देन 0। अंदर आएंगे, फिर से 1 mod 10 करेंगे तो आंसर आएगा 1, x की वैल्यू 1 आएगी। प्रीवियस सम जो भी था वो 152 था, उसमें नया जो डिजिट मिला है उसका क्यूब हम एडअप करेंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही आएगा आंसर। 152 प्लस 1 दैट इज 153। num1 को फिर से चेंज करेंगे, अब num1 इक्वल टू num1 दैट इज 1 डिवाइड बाई 10। 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 आएगा तो 0.1 तो निकाल देंगे हम, 0 बचेगा, तो num1 क्या बनेगा, 0। जैसे ही 0 बनेगा वैसे हम इस कंडीशन के पास जाएंगे, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल के बाहर आएंगे। जब हम वाइल के बाहर आते हैं तो सम की वैल्यू क्या होती है, 153 होती है। लास्ट केस में वो 153 हुई थी, बराबर ना। 152 प्लस 1 करने के बाद 153 हुई थी और बाहर निकलते समय सम की वैल्यू कितनी थी, 153। अब मुझे बताओ, ये 153 यदि वैल्यू आ गई सम की, इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर की वैल्यू और सम की वैल्यू क्या है, इक्वल है। यदि इक्वल है तो आर्मस्ट्रांग नंबर होना चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से, बराबर। अब मुझे बताओ, यदि ये होना चाहिए तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सम इक्वल टू नम, सम की वैल्यू 153 है, नम की वैल्यू भी कितनी है, 153 है। हमने नम की वैल्यू चेंज नहीं की। ओके, जब हम व्हाइल लूप के एंडिंग में आए या व्हाइल लूप जब फॉल्स हुआ, तब क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि num1 की वैल्यू 0 थी, num1 की वैल्यू 0 थी, इसके लिए व्हाइल लूप फॉल्स हुआ। लेकिन नम की वैल्यू चेंज नहीं की हमने, नम की वैल्यू वही थी।
नम की वैल्यू जो भी थी, मतलब इनिशियली 153 थी, वो हमने num1 में कॉपी की और बाद में हमारी ये प्रोसेसिंग में num1 चेंज हो गया और 0 बन गया। यदि हम num की कॉपी नहीं बनाते, मतलब num की कॉपी num1 नहीं बनाते, तो क्या होता, num पर ही ऑपरेशन करते हम, और num पर ऑपरेशन करने के बाद num चेंज हो जाता, और num यदि चेंज होता और 0 बन जाता तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। सम तो 153 बनेगा, नम 0 बन जाएगा क्योंकि आपने नम को चेंज कर लिया। और यदि आपका नंबर आर्मस्ट्रांग की है तो भी आपको एल्स पार्ट में जाएंगे हम और क्या दिखाएंगे, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। ओके, ये प्रॉब्लम थी और इसके लिए हमने क्या किया, और एक कॉपी बना के रखी। अब क्या कर रहे हैं हम, नम वन पे ऑपरेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से नम वन चेंज होकर 0 बन गया। ऑपरेशन करना तो जरूरी है, अदरवाइज सम नहीं मिलेगा। तो ऑपरेशन करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद नम वन क्या बन गया, 0 बन गया, लेकिन नम वन इंटैक्ट रहा, जैसे चाहिए वैसे ही रहा। और बाद में हमने सम को कंपेयर किया नम के साथ, 153 इज कंपेयर्ड विद 153, इट इज मैचिंग। ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं, हमने देखा है इसे। हेंस नंबर इज आर्मस्ट्रांग। यदि सम की वैल्यू एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशंस, यदि मान लो सम की वैल्यू यदि 150 आती और नम हमारा 152 रहता, लेट अस सपोज, तो क्या होता, इट इज नॉट मैचिंग। मैचिंग नहीं है तो नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। दिस इज वेरी क्रूशियल, दिस लॉजिक इज क्रूशियल। और कॉपी क्यों बनाते हैं हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। बहुत लोग लॉजिक तो लिखते हैं लेकिन नम पर ही क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, नम चेंज हो जाता है और बाद में एक कंडीशन जहां चाहिए वहां पर भी वर्कआउट नहीं होती है। नंबर जब 153 होगा तो ये कंडीशन वर्कआउट होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू और हाईलाइट यू, जब हम इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करते हैं, ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, तो इक्वालिटी ऑपरेटर का बेसिक गोल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है वो राइट हैंड के साइड के साथ कंपेयर करना। यदि मैचिंग हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैचिंग हो रहा है तो हम बताएंगे कि इट इज नॉट मैचिंग, उसके हिसाब से आंसर देंगे। मैचिंग हो रहा है तो ट्रू कंडीशन है, मैचिंग नहीं हो रहा है तो फॉल्स है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इक्वालिटी ऑपरेटर में, हमेशा ये याद रखो, इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करते समय लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका वो अननोन होना चाहिए। अननोन मतलब ये पहले पता नहीं था, अभी अभी पता चला। सम की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी थी, हमें पता नहीं था सम क्या आएगी, हमने ऑपरेशन करने के बाद सम निकाली और बाद में हम यहाँ तक आ गए, तो ये सम हमारा अननोन था। ओके, जिसे कंपेयर करना था, जो अननोन है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, और जिसके साथ कंपेयर करना है, ओके, वो राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। द क्वांटिटी विच यू वांट टू कंपेयर शुड बी प्रेजेंट एट लेफ्ट हैंड साइड, द क्वांटिटी टू विच यू वांट टू कंपेयर शुड बी प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, यदि आप कोई एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और केमिकल टेस्ट कर रहे हैं, लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, तो उस वो जो प्रैक्टिकल करने वाले हो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए, वो हमारे केमिस्ट्री के मैनुअल में दिया रहता है। जिन्होंने 11-12 की है उनको केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, या डिप्लोमा स्टूडेंट को भी था, ओके, तो उनका जो मैनुअल रहता है उसमें दिया जाता है कि ये टेस्ट करने के बाद आपको ये कलर का आउटपुट आना चाहिए। और जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपको कुछ आउटपुट आता है, बाद में हम क्या करते हैं, जो भी आउटपुट आया है, हमें मिला है, उसे हमारा जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन आना चाहिए था उसके साथ कंपेयर करते हैं। ओके, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड में रहता है। ओके, जिसके साथ कंपेयर करते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड में रहता है, जिसे कंपेयर करना था वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो सम को हमें कंपेयर करना था तो सम कहाँ पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। किसके साथ कंपेयर करना था, नम के साथ, क्योंकि नम तो एक्चुअली इंटैक्ट है, नम को चेंज नहीं करते हैं हम, नम यूजर ने दिया हुआ वैल्यू है। तो जिसे कंपेयर करना था वो लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके साथ कंपेयर करना था उसे राइट हैंड साइड में, ऑलवेज। और और एक छोटी भाषा में याद रखना है, इजी भाषा में, लैंग्वेज में याद रखना है, जो भी हमने कंप्यूट किया है, जो भी अननोन क्वांटिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी नोन क्वांटिटी थे पहले से वो हमेशा राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके साथ हम इक्वालिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और हम चेकआउट करेंगे। और ये इक्वालिटी का जो मैंने लॉजिक बताया है आपको, अननोन क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड, नोन क्वांटिटी राइट हैंड साइड, ये हमेशा आपको यूज करना है। कोई भी इक्वालिटी ऑपरेशन हो ये आपको यूज करना है। बहुत लोग ऐसे भी पूछते हैं, सर ये ना करके हमने नम इक्वल टू सम किया तो नहीं चलेगा क्या, चलेगा। ओके, लेकिन ये पता चलता है आपके इस उस एक्ट से कि आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में बहुत कुछ पता नहीं है अभी।
ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जजमेंट करने का पॉइंट है। ओके, जब भी कोई भी कंपनी जब नए कैंडिडेट को हायर करती है तो ऐसी छोटी 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 चीजें देखती है और उससे भाप लेती है कि कैंडिडेट कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है अपने कंसेप्ट में। ओके, ये आपको करना है हमेशा, इसी तरह से आपको काम करना है। अननोन क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड, नोन क्वांटिटी राइट हैंड साइड। आई थिंक द प्रोग्राम इज क्लियर। इसी प्रोग्राम को आपको डू व्हाइल में कन्वर्ट करना होगा तो आप कर सकते हो। डू व्हाइल में यदि इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है आपको, कि आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट कंट्रोल करना पड़ेगा। बाहर निकलते समय आपको कंडीशन चेक करनी होगी कि नम 0 से ग्रेटर है या नहीं है, एंड वन टाइम आपको उसे रन करना होगा बिकॉज इट इज एग्जिट कंट्रोल। So which loop you want to use, it is up to you, whether you can use while loop or whether you can use do while loop। लेकिन बहुत सिमिलर लूप्स है। हाँ, कोई चाहता है कि while do while नहीं यूज करना है, इस प्रोग्राम को मुझे फॉर से करना है तो भी कर सकता है। फॉर से भी इसी प्रोग्राम को हम कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप पूछोगे फॉर लूप से यदि मुझे इस प्रोग्राम को करना है तो इनिशियलाइजेशन कहाँ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ है? जरूरी नहीं है हमेशा फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना ही है आपको। ओके, विदाउट गिविंग दैट पर्टिकुलर पार्ट आल्सो यू कैन राइट अ फॉर। मैं बताऊंगा, मैं पहले इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ किस तरीके से इसी प्रोग्राम में हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, so I will start the command prompt followed by cd slash, followed by you have to give the path, right, where your program resides. So this is my path. I will go to command prompt and first I will type d colon, after that I will use cd command and I will type the path. Okay, this is the path. After that you have to use set path command, right? The command should be set path, and here you have to set the path of your jdk. तो jdk कहाँ पर है इंस्टॉल किया हुआ है, मुझे पता है सी ड्राइव में किया है, जहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स में जावा फोल्डर में jdk16 वहाँ पर बिन है। ठीक है, ये देखो, शायद आपने दूसरी जगह पर इंस्टॉल किया होगा तो उसके हिसाब से आपका पाथ थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगा। तो आपको केवल पाथ याद रखने की जरूरत नहीं, बिन तक पहुंचना है और वहां से पाथ को क्या करना है, कॉपी करके उठाना है और यहाँ पर लाके रखना है। ठीक है, तो पाथ भी सेट हो गया। अब हम कमांड देंगे जावा सी, हमेशा की तरह। क्लास का नाम वो क्या है, example6, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास, डॉट जावा। जैसे ही देंगे कोई प्रॉब्लम्स होंगे, एरर्स होंगे तो दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसके लिए अब हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं बाय यूजिंग जावा एंड नेम ऑफ द क्लास। एंटर नंबर टू चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग, पहले 153 देते हैं और देखते हैं आउटपुट, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर से एक बार हम चेक करके देखते हैं, 121 दिया है नंबर, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। सो आर्मस्ट्रॉन्ग होगा तो भी आपको आउटपुट अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो भी आपको करेक्ट आउटपुट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन परफॉर्म इट। अभी इसी प्रोग्राम में यदि आपको फॉर लूप यूज करना है तो क्या चेंजेस करने होंगे, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर कि तो व्हाइल लूप जहाँ है वहां पर मैं कमेंट देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स है। इफ स्टेटमेंट की तो मुझे जरूरत है, केवल मुझे व्हाइल लूप में मल्टी लाइन कमेंट्स देना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दिस ये लूप खत्म हो गया, उसके बाद मैंने कमेंट को भी एंड अप कर दिया। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखूंगा, व्हाइल के बदले हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो फॉर, ध्यान दो अच्छी तरह से, देखो फर्स्ट पार्ट क्या होता है फॉर लूप पे, इनिशियलाइजेशन। अभी मेरे पास इनिशियलाइजेशन नहीं है तो इनिशियलाइजेशन में ब्लैंक छोड़ूंगा। ब्लैंक छोड़ूंगा मतलब इनिशियलाइजेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमा सेमी कॉलन देते हैं, बराबर है, सेमी कॉलन। तो ये सेमी कॉलन दिया, इसका मतलब क्या है, और सेमी कॉलन दिया और बाद में यदि मैंने कंडीशन लिखा, कंडीशन तो वही है मेरी, यही कंडीशन है, और बाद में फिर से सेमी कॉलन दिया, बाद में मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया और फॉर लूप, सॉरी इंडेंटेशन थोड़ा फॉलो करना जरूरी है तो हमें प्रोग्राम रीडेबल बनता है हमारा, और एंड अप किया। अब आप सोचोगे ये कौन सा लूप है, ये फॉर लूप ही है। ये ऐसा फॉर लूप है जहां पर हमारा इनिशियलाइजेशन मिसिंग है, इनिशियलाइजेशन नहीं देना है हमें, तो आप डायरेक्टली सेमीकोलन दे सकते हो। डायरेक्ट सेमीकोलन दे रहे हो, बाद में कंडीशन दे रहे हो, मतलब इनिशियलाइजेशन आपको नहीं देना है। सिमिलरली आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं देना है, यू कैन गो इट।
तो दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर लूप। फॉर लूप में 3 पार्ट रहने चाहिए, आपके पास केवल एक पार्ट था, तो आपने क्या किया, बाकी 2 पार्ट ब्लैंक छोड़ दे। और ब्लैंक कैसे पता चलेगा, सेमीकोलन दे दिया ना, और उसके बाद कंडीशन दी। इसका मतलब ये है कि आपका सेमीकोलन के पहले जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट है वो ब्लैंक है। सिमिलरली कंडीशन के बाद भी आपने सेमीकोलन दिया और बाद में ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ब्लैंक है, आपको नहीं देना है, इट इज अप टू यू। इसके बाद जो भी कोड हमारा फॉर व्हाइल लूप में है वो कोड हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और फॉर लूप में रख देंगे और सेव करेंगे। और ये अब नहीं वर्कआउट होगा, अब फॉर लूप वर्क करेगा हमारे लिए। सो सेम प्रोग्राम कैन बी वर्क बाय यूजिंग अ फॉर लूप। अब हम फिर से कंपाइल करेंगे क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन किया है सोर्स कोड में, ठीक है, और फिर से हम रन करेंगे। 153 नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर से एक बार रन करते हैं, 123 नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, यू कैन गेट इट। सो इट इज पॉसिबल। सो ये क्या है कि फॉर लूप एंड व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप क्या है, भाई भाई है, बहुत सिमिलर है, ठीक है, एक जैसा ही काम करते हैं, लेकिन आप किस तरीके से उसे यूज करते हो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तब तो कब हम फॉर यूज करेंगे, कब व्हाइल यूज करेंगे, दिस इज वन इंटरव्यू क्वेश्चन। जब आपके पास इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारी चीजें आपको देनी है, ओके, उस समय हम फॉर लूप यूज करते हैं। और जब आपके पास केवल कंडीशन है, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इतना मायने नहीं रखता है, तो आप व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप यूज करोगे। अब व्हाइल कब यूज करेंगे, डू व्हाइल कब यूज करेंगे, जब एंट्री कंट्रोल करना है, मतलब एंट्री पे ही हमें कंडीशन चेक करनी है तो व्हाइल लूप यूज करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे हमने की है। यदि किसी को एग्जिट कंट्रोल करना है, बाहर निकलते समय यदि कंडीशन चेक करनी है तो डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। So it depends upon the situation. I think it is now very clear to you when to use a while loop, when to use a do while loop. आपके लिए एक होमवर्क ले लो, ये प्रोग्राम कोड तो मैं आपको दे रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज रिवर्स और नॉट। तो थोड़ा सा चेंज करो स्टेटमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स ऑफ अ नंबर, दैट्स इट। आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है कि, और आपको उस नंबर का रिवर्स निकालना है। यदि आपको नंबर दिया है 162 तो उसका रिवर्स निकालना है, क्या आएगा, 261। सो ट्राई फॉर इट। वहां पर भी लॉजिक इसी तरीके से काम करेगा। 162 यदि नंबर दिया है, आपको हिंट दे देता हूँ, 162 नंबर दिया है तो आपको पहले क्या करना होगा, डिजिट सेपरेट आउट करने होंगे, 162, ठीक है। बाद में आपको रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट करना होगा, 162 का रिवर्स क्या होता है, 261 होता है। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट वाला नंबर था, 162 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 2 है, वो हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिजिट वाला नंबर होना चाहिए, ओके, मतलब 100 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। मराठीमध्ये सांगायचं तर एकक स्थानचा जो अंक आहे तुमच्याकडे, म्हणजे तो 2 आहे, तो तुम्हाला रिव्हर्स मध्ये काय झाला पाहिजे, शतक स्थानचा अंक झाला पाहिजे। जो दशक स्थानचा अंक आहे 6 आहे, तो नेहमी दशक स्थानचा अंकच राहायला पाहिजे। आणि जो शतक स्थानचा अंक आहे म्हणजे 1 आहे, तो तुमचा काय झाला पाहिजे, एकक स्थानचा अंक झाला पाहिजे। 261 मध्ये एकक स्थानचा अंक झाला पाहिजे। हे जर तुम्ही करू शकलात तर काय होणार आहे, तुमचा नंबर रिव्हर्स होणार आहे। सो थिंक बेस्ड ऑन दोज लाईन्स। डिजिट सेपरेटर करावे लागतीलच, त्याच्या व्यतिरिक्त पण थोडंफार काम करावं लागेल, ज्यामुळे तुम्हाला हे जे कन्व्हर्जन आहे ते करणं पॉसिबल होईल। सो दिस इज वन असाइनमेंट फॉर यू। दिस इज, you can take it as a assignment number 2. I have already given assignment number 1. There are some codes based on a for loop. This is, you can take it as a assignment number 2. And in assignment number 2, this is the first question. The question is, write a program to find reverse of a number. ठीक आहे, याला ट्राय करा, तुम्हाला गुगलमध्ये पण मिळू शकेल, पण कॉपी पेस्ट करण्याऐवजी स्वतःचा विचार करा, ओके, आणि मग ट्राय करा, ठीक आहे। तुम्ही गुगलचा आउटपुट बघितलं तरी चालेल, गुगलमधून तुम्ही आन्सर बघू शकताय, परंतु एक्सपेक्टेशन असं आहे की ज्यावेळेला तुम्ही ते बघताय तेव्हा अंडरस्टँड करा आणि मग स्वतः कोड करायचा प्रयत्न करा, त्या नोटबुकवर लिहिण्याचा प्रयत्न करा। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम युअर साइड, ओके। सो आय थिंक दिस व्हाईल डू व्हाईल इज क्लिअर टू यू नाउ।
next part that we can give it, we start it, that is so this decision making is already we have seen. Now in this session, next part what we will see is that is operator precedence and typecasting. The next practical is based on the typecasting. We will see the operator precedence later on. We first see the typecasting. What is typecasting? So converting one primitive data type into another, it is called as a typecasting. Typecasting is also called as a type conversion in Java. So there is a conversion from one data type to another data type, or one primitive data type to another primitive data type. You can cast a primitive data type in two ways. One is called as a widening operation and the second is called as a narrowing operation. What is widening? In the name itself it is there. Widening क्या होगा? Widening मतलब बढ़ाना, increase करना, okay, बड़ा करना. That is called as a widening. So converting a lower data type into a higher data type. छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करके ले जाना मतलब वाइडनिंग है. इन दिस केस ऑफ कास्टिंग ऑन कन्वर्जन इट इज डन ऑटोमेटिकली. अब ये बहुत इजी है चीज, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको इसके पहले भी. यदि आपके पास 10 लीटर का कंटेनर है या बकेट है और आपके पास जो भी स्टोर करने के लिए जो पानी है, वाटर है, वो केवल 5 लीटर का है. यू कैन इजिली पोर 5 लीटर वाटर इनटू 10 लीटर कंटेनर, 10 लीटर स्टोरेज यूनिट. तो आपके पास कोई एक शॉर्ट वैल्यू है, ओके, उसे आप इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर सकते हो. आपके पास इंटीजर वैल्यू है तो उसे आप लॉग में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इंटीजर की जो साइज है वो 4 बाइट्स है. हमने देखा था जब हमने ये साइज देखी थी हर एक डेटा टाइप की, मैंने आपको बताया था एक टेबल जो है वो आपको बना के रखना है. सो इन दैट पर्टिकुलर टेबल इट इज मेंशन फॉर इंटीजर वी रिक्वायर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, फॉर लॉन्ग वी रिक्वायर 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी. तो यदि आपके पास जो वैल्यू है वो 4 बाइट में स्टोर हो सकती है, उसी वैल्यू को आपने यदि 8 बाइट्स में स्टोर किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा. केवल थोड़ा बहुत वेस्टेज होगा, बराबर ना. 5 लीटर वाटर यदि हमने 10 लीटर वाली कंटेनर में रखा तो बाद में यदि फिर से नया वाटर आ गया जो 10 लीटर था, वो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे. सो देयर इज सम वेस्टेज ऑफ अ स्पेस, वेस्टेज ऑफ अ मेमोरी, इट इज देयर, बट द ऑपरेशन इज ऑटोमेटिक. नो सेपरेट प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, बराबर ना, अलग से प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑटोमेटिकली. हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. मैंने बताया था इम्प्लिसिट बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं और इंटरनल बोलते हैं. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो कौन सा होता है? वाइडनिंग. जो वाइडनिंग ऑपरेशन रहते हैं वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है. इन दिस केस बोथ डेटा टाइप शुड बी कॉम्पेटिबल विथ ईच अदर. केवल दोनों डेटा टाइप क्या होने चाहिए? कॉम्पेटिबल होने चाहिए. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपके पास बाइट वैल्यू है वो आप शॉर्ट डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हो. शॉर्ट है तो इंटीजर में जा सकते हो, इंटीजर से लॉन्ग में, लॉन्ग से आप फ्लोट में जा सकते हो और बाद में डबल में जा सकते हो. बिकॉज डबल ये हाईएस्ट डेटा टाइप है. किसमें? इसमें नंबर सिस्टम में. न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो डबल ये हाईएस्ट डेटा टाइप है. तो आपके पास यदि बाइट वैल्यू है, बाइट डेटा टाइप की वैल्यू है, वो आप डबल डेटा टाइप में भी स्टोर कर सकते हो. दिस इज वन एग्जाम्पल व्हाट गिवन हियर. तो दिस इज अ ए वेरिएबल, दैट इज इंटीजर वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 9. उस वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं? डबल वेरिएबल में, जो बी वेरिएबल है उसमें स्टोर कर रहे हैं. तो ये ऑटोमेटिक कास्टिंग है, INT टू डबल. दोनों प्रिंट कर सकते हैं हम. पहले की वैल्यू 9 आएगी क्योंकि ए कौन सा है? इंटीजर है. दूसरा जो है बी है वो डबल है, इसके लिए उसकी वैल्यू 9.0 आएगी. ये डबल फॉर्मेट में हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू भी आती है. अब आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसके लिए क्या होगा? 0.0 आएगा, 9.0. बट ये स्टोर तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक कास्टिंग, वाइडनिंग ऑपरेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. और टाइप कास्टिंग मतलब टाइप कन्वर्जन. इसके विरुद्ध जो होगा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो होगा वो क्या होगा?
नैरोइंग ऑपरेशन और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट मतलब आपको कुछ करने की जरूरत है, प्रोग्रामर को कुछ काम करने की जरूरत है, देन एंड जनरली इट इज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, आर्किटेक्चर डेवलपर ने यदि प्रोविजन दी है तो इम्प्लिसिट है, तो ये वाइडनिंग ऑपरेशन है। यदि प्रोविजन नहीं दी है, प्रोग्रामर को कुछ काम करना है, तो नैरोइंग है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो दिस इज वन एग्जांपल। यहाँ पर दिया है देखो, डबल डेटा वैल्यू है हमारे पास, उसे हम बाइट में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या डबल से हम फ्लोट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीजर से शॉर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दैट केस ओके, इट इज अ narrowing operation. So converting a higher data type into a lower data type, it is called as a narrowing. In this case, casting on a conversion is not done automatically. You need to convert explicitly using the cast operator explicitly. Therefore, it is also called as a explicit type conversion. Explicitly हम type conversion कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया है जहां पर ए डेटा टाइप क्या है, उसका डबल है, 9.78 वैल्यू है उसकी, उसे हमें एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना है। मतलब डबल से हमें इंटीजर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आपको जो वैल्यू स्टोर करनी है वो बी में स्टोर करनी है, उसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, अब लास्ट केस में इंटीजर टू डबल जाना था, इस केस में आपको डबल टू इंटीजर जाना है, छोटा करना है आपको। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू है वो ए है, आई एन टी बी इक्वल टू ए लिख सकते हो आप, आई एन टी बी इक्वल टू ए ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ए का डेटा टाइप है डबल, उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट बी में स्टोर करने जाओगे तो एरर आएगा, तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो जहां पर ए लिखा है उसके पहले आपको ये ब्रैकेट्स में, ओके, ये ब्रैकेट्स में क्या करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट्स में क्या करना पड़ेगा, जिस डेटा टाइप में आपको स्टोर करना है, बी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में स्टोर करना है, उस डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ेगा। तो कंपाइलर को पता चलेगा कि ए, ये जो डबल वेरिएबल है, उसका जो इंटीग्रल पार्ट है, उस इंटीग्रल पार्ट को मुझे बी वेरिएबल में स्टोर करना है। इंटीग्रल पार्ट को स्टोर करना है, इसका मतलब ही ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट को भूल जाना है, निकाल देना है। फ्रैक्शन पार्ट ए में रहेगा, लेकिन बी में स्टोर करते समय हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो बी में क्या आएगा, केवल इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या है इस नंबर का, 9, सो 9। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 9.78, बी की वैल्यू है 9। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हमें ये ऑपरेटर आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कास्टिंग ऑपरेटर और कन्वर्जन ऑपरेटर। ओके, हमने लास्ट सेशन में देखा था ऑपरेटर्स, न्यू ऑपरेटर था, डॉट ऑपरेटर था, उसमें ये भी एक ऑपरेटर था। और ये क्या है, स्पेशल सिंबल से, ये कोई सिंबल मैथमेटिक्स में नहीं यूज करते हैं, ये स्पेशल सिंबल से रिलेटेड टू अवर जावा प्रोग्राम। सो नैरोइंग करना है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना है, मतलब हायर से लोअर के पास जाना है, ये हायरार्की दी है और उसका ये एग्जांपल है। तो ये करते समय हमें ये ऑपरेटर यूज करने की जरूरत है, एक्सप्लिसिटली वी हैव टू यूज इट। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ऑपरेटर तो यूज करते हैं बहुत लोग, गलती क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, तो ये हमेशा याद रखो, आपको यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप लिखना है, जिस डेटा टाइप में आपको नैरो करके रखना है। मुझे बी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर डेटा टाइप मुझे नैरो करके रखना है, तो इंटीजर ही आना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट रहता तो शॉर्ट आता, यहाँ पर यदि बाइट रहता तो बाइट आता। ये जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है और टाइप कन्वर्जन है, ये हमें बहुत काम आएगा बाद में, जब हम क्लास पढ़ेंगे तो उस समय भी ये काम आएगा। सो रिमेंबर दिस, व्हाट इज वाइडनिंग, व्हाट इज नैरोइंग। वाइडनिंग को एक वर्ड में याद रखना है तो समझ लो कि 5 लीटर के पानी को, वाटर को आप 10 लीटर की टाकी में स्टोर कर रहे हो, तो छोटे को बड़े के पास लेके जा रहे हो, वाइडनिंग। तो ये इजीली पॉसिबल है, हमेशा होता ही है, स्टोर इजीली कर पाओगे। इम्प्लिसिट, इंटरनल, इसके विरुद्ध जो होगा, मतलब ज्यादा पानी है लेकिन कंटेनर छोटा है, तो क्या होगा वो, एक्सप्लिसिट, नैरोइंग, छोटा करना, नैरोइंग, एक्सप्लिसिट, एक्सटर्नल। और इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोग्रामर को ये मेहनत करनी पड़ती है, प्रोग्रामर को कन्वर्जन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू about the typecasting. So they have given this experiment, develop a program, there is okay, develop a program for implementation of explicit type conversion. तो ये एग्जाम्पल है उसका, ये प्रोग्राम मतलब ये एग्जाम्पल है दिया है, दिस इज अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम तो ये क्लियर कट अवेलेबल है, तो केवल कॉपी पेस्ट करके रन करने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो आपके लिए मैं करके दिखाता हूँ एक बार। So we will execute it one time. ठीक है, क्लास का नाम हम देंगे example7, रिलेवेंट नाम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन मेथड है, ठीक है। तो मेन मेथड को थोड़ा अंदर लेके जाते हैं, इंडेंटेशन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को प्रिंट करेंगे, पहले सेमीकोलन दे देंगे, इसके बाद बी को प्रिंट करेंगे और फिर से सेमीकोलन देंगे। ठीक है, तो विल स्टोर इट। क्या करेंगे, क्लास नेम जो भी है उससे ही हम उस फाइल को हम स्टोर करेंगे हमेशा की तरह, डॉट जावा एक्सटेंशन एंड सेव इट। होने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं, ऑलरेडी हमने पाथ सेटअप करके रखा है, केवल हमें कंपाइल करना है, जावा सी example6 के बदले example7 डॉट जावा, और इसके बाद हम रन करेंगे। कोई एरर्स नहीं है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ है, तो हम रन करेंगे। ठीक है, तो पहले का आउटपुट आया 9.78, क्योंकि ये डबल वैल्यू को प्रिंट किया, और बाद में कास्ट करने के बाद, कन्वर्जन करने के बाद जो इंटीग्रल वैल्यू मिली उसे प्रिंट किया, दैट इज 9। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आप इस यहाँ पर यदि देखोगे तो यहाँ पर मैंने यूटिल पैकेज नहीं यूज किया, इंपोर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमने इनपुट यूजर से नहीं लिया, हमने स्कैनर का यूज नहीं किया, इसके लिए हमने यूटिल पैकेज का यूज नहीं किया। स्कैनर क्लास को यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिल पैकेज को यूज करना पड़ेगा। स्कैनर को नहीं यूज करना है, डायरेक्टली वैल्यू से देने हैं, तो आपको यूटिल पैकेज को यूज करने की जरूरत नहीं है। वी आर डायरेक्टली असाइनिंग द वैल्यूज। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो कहाँ यूज करना होता है पैकेज, कहाँ नहीं यूज करना होता है, इट डिपेंड्स वेदर यू आर यूजिंग अ स्कैनर क्लास और नॉट। क्योंकि स्कैनर क्लास हम यूटिल पैकेज में बना के रखा है आर्किटेक्चर डेवलपर ने। ठीक है, इसके लिए हम जब जब स्कैनर यूज करते हैं तब तब यूटिल पैकेज को यूज करते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट यूज इट। हम देखेंगे ये पैकेज के बारे में, आराम से देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें कंस्ट्रक्टर के बारे में दिया गया है, सो विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्टर इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन से हम कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम मैनुअल के पास जाते हैं और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है अभी का, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, जो व्हाइल पर है और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन पर भी है। तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक्सपेरिमेंट है। दे हैव गिवन दिस मिनिमल theoretical background, what is narrowing and explicit conversion operation. Same thing it is given there in your PDF files also. ये शो द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग प्रोग्राम अभी मैंने दिया है, वही लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वीडियो में है वही लिख सकते हो, और PDF में भी सेम प्रोग्राम है, तो कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज कास्टिंग, यू कैन राइट इट, द आंसर ऑलरेडी इट इज देयर। व्हाट इज कन्वर्जन, राइट। तो दो टाइप है उसके, दोनों टाइप को आप अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफरेंस भी लिख सकते हो, आपको पता चला है, और नैरोइंग क्या है ये भी लिख सकते हो। सो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं अभी। ठीक है, सो फर्स्ट हमें एरर और आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है वो निकालना है। तो टेस्ट नाम का क्लास दिया है हमें, जहाँ पर मेन मेथड है। ठीक है, ये क्लास का नाम क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर कुछ एरर होंगे तो हम निकालेंगे। एक डबल वेरिएबल दिया है तो परफेक्ट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। बाद में हम डबल वेरिएबल में जो वैल्यू है उसे हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं,
यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। डायरेक्टली हम डी की वैल्यू को एल में नहीं रख सकते, हमें ये करना ही पड़ेगा। और इसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल में ये वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज डबल वैल्यू इज पी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस कोड को एक बार करके देखेंगे। हम क्या करते हैं, इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। दिस इज बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द एरर्स। नया नोटपैड यूज करेंगे, 7-1 करता हूं मैं यहाँ पर। और कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है। ठीक है, ओके, तो 9-1, एग्जाम्पल 9 जैसे उन्होंने दिया है उस तरीके से हम इनिशियलाइज करके ले लेंगे। एक डबल वेरिएबल, बाद में लॉन्ग, उसके बाद इंटीजर वेरिएबल। हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। d इक्वल टू 100.74, सेम इज देयर एस 100.04। उसके बाद लॉन्ग वेरिएबल, ध्यान से देखो, इक्वल टू टाइप कन्वर्जन करके लॉन्ग लाया है यहाँ पर, और किसे कन्वर्ट कर रहे हैं, डी को। इसके बाद इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर हम ले रहे हैं आई, और यहाँ पर इंटीजर और कौन सी वैल्यू को, एल। तो यहाँ पर हम पहले प्रिंट करेंगे डी को, बाद में प्रिंट करते हैं हम एल को, और लास्ट में हम प्रिंट करेंगे आई वेरिएबल। लास्टली वी ट्राई टू प्रिंट द आई वेरिएबल। आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनके पास सिस्टम अवेलेबल है वो लोग सिस्टम पर कर सकते हैं, जिनके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है उनके पास ऑनलाइन एडिटर भी अब आते हैं, वहाँ पर भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि छोटे छोटे कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं ऑनलाइन एडिटर पे, और आपको जैसे कंपाइलर पे आउटपुट मिलता है और कंप्यूटर पे आउटपुट मिलता है, सेम आउटपुट वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ऑलरेडी पाथ सेट तो हो चुका है, हमें केवल क्या करना है, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। जावा एग्जाम्पल 91.java। ओके, इसके बाद तो एरर तो नहीं है, कंपाइल टाइम एरर कुछ नहीं है कि 100.04 बाद में 100.100, सो आउटपुट परफेक्टली आ रहा है। 100.04 क्यों, डी की वैल्यू डबल है। लॉन्ग की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाएगा। लॉन्ग भी होगा तो लॉन्ग में भी इंटीग्रल पार्ट आता है। बहुत बड़े इंटीजर आ सकते हैं लॉन्ग में, लेकिन इंटीग्रल पार्ट रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट लॉन्ग में नहीं रहता। फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो आइदर फ्लोटिंग पॉइंट लेना है या डबल लेना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो निकल जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाएगा तो 100 रहेगा, तो 100 एल की वैल्यू होगी, और आई की वैल्यू भी 100 होगी, क्योंकि 100 ये बहुत छोटा नंबर है, ये इंटीग्रल वेरिएबल में भी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर 100.04, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा, मैंने क्यों किया कि आपको ये पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये हमें एरर्स ही आते हैं। आपको दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, राइट एरर और आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो कभी एरर भी आएंगे, कभी आउटपुट भी आएगा, तो यहाँ पर तो आउटपुट आ जाएगा 100.04, 100, 100, ये तीन वैल्यूज क्या हो गया, आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने इसलिए आपको रन करके दिखाया तो आपको पता चले कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइट वेरिएबल लिया है p जिसकी वैल्यू 50 है, उसके बाद 50 को मल्टीप्लाई किया और बाइट में ही स्टोर किया। आई थिंक देर इज ए इशू हियर, हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। बाइट के लिए तो हमें कितना मिलता है, हमें बाइट के लिए 1 बाइट मेमोरी लोकेशन रहता है। शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स रहते हैं, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स रहते हैं, बराबर है। मैंने आपको बताया था कि हर एक डेटा टाइप को कितने बाइट लगते हैं वो लिख के रखो, उस दिन के पीपीटी में हमने ये देखा था।
तो बाइट के लिए हमें वही 1 बाइट मेमोरी मिल जाता है। बाइट ये डेटा टाइप का भी नाम है, और 1 बाइट, 2 बाइट्स, 8 बाइट्स, इसमें भी बाइट ही वर्ड्स यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बाइट बी लिखते हैं तो एक डेटा टाइप का नाम की तरह यूज करते हैं, इक्वल टू 50। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एरर आएगी, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो b इंटू टू किया है, 50 है तो 50 इंटू 200 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जन भी किया है, टाइप कन्वर्जन किया है, और फिर से बाइट में रखा है, और बाद में उसी वैल्यू को प्रिंट भी करने की कोशिश की है। तो मैंने पुराना वाला कोड जो था उसे कमेंट में रखा, क्योंकि ये पुराना वाला कोड अब एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, नया कोड मुझे एग्जीक्यूट करके देखना है। तो एक ही प्रोग्राम में हम कर सकते हैं, हमें कमेंट के अलग अलग कोड रन करके देख सकते हैं, इट इज़ वेरी पॉसिबल। ये केवल हमें आउटपुट करेक्ट मिलने के लिए करना है। सेम प्रोग्राम कंपाइलेशन किया, ओके, हियर पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम आईएनटी टू बाइट। तो ये लॉसी कन्वर्जन है आईएनटी टू बाइट। तो ये जो वैल्यू आती है वो बड़ी वैल्यू है, 100। 50 इंटू टू करने के बाद 100 आती है, और 100 ये वैल्यू हम 1 बाइट में स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू आर गेटिंग अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और एरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह के एरर्स आएंगे, बाद में हम देखेंगे। वन इज कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम, कंपाइलेशन करते समय जो एक्सेप्शन आते हैं उसे कंपाइल टाइम बोलते हैं, और जो कंपाइलेशन के समय नहीं आते हैं, प्रोग्राम रन करने के बाद आते हैं, उसे रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कब आएंगे? जब प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे तभी आएंगे। यदि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आते हैं तो प्रोग्राम हम रन नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आ रहा है? इनकॉम्पेटिबल टाइप। क्यों इनकॉम्पेटिबल टाइप? बी की इनिशियल वैल्यू तो 50 थी, वहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसका डेटा टाइप बाइट था, लेकिन हम जब b इंटू टू करते हैं तो वैल्यू 100 बन जाती है, और उसे हम, ये इंटीग्रल वैल्यू ही है, यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट कोई नहीं है, तो 100 ये बड़ी वैल्यू को हम बाइट डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि b फिर से क्या है? बाइट है। तो ये जो वैल्यू आई वो इंटीजर आई, उस इंटीजर वैल्यू को हम फिर से स्टोर कर रहे हैं बाइट फॉर्मेट में, दिस इज नॉट पॉसिबल। इंटीजर वैल्यू भी है तो उसमें इंटीग्रल पार्ट है, बाइट वैल्यू में भी इंटीग्रल पार्ट होता है, तो पूरा नंबर आपको स्टोर करना पड़ेगा। 100 में से आप केवल 10 को रखोगे और 0 को निगलेक्ट करोगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। जिसका मतलब पूरा नंबर स्टोर करना है तो आपके पास डेटा टाइप आपके पास मेमोरी लोकेशन अवेलेबल नहीं है। सो क्या दिखा रहे हैं? पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम आईएनटी टू बाइट। लॉस हो रहा है इंफॉर्मेशन का, सारा सारा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पाएगा, सारे डिजिट स्टोर नहीं हो पाएंगे, कुछ डिजिट स्टोर हो पाएंगे, इसके लिए लॉसी कन्वर्जन। राइट, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो यहाँ पर आपको ये एरर आएगा। ठीक है, जो एरर आपको दिखाई दे रहा है वही एरर आपको लिखना है। आपको चाहिए तो इस एरर को आप पॉज करके क्या कर सकते हो? नोट डाउन करके रख सकते हो, और बाद में मैनुअल में लिख सकते हो। सेम एरर यू हैव टू राइट, बिकॉज b इंटू टू करने के बाद जो वैल्यू आती है वो इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू को हम बाइट डेटा टाइप में, b का डेटा टाइप तो बाइट है, कन्वर्जन करके स्टोर नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज इनकॉम्पेटिबल टाइप, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम आईएनटी टू बाइट। राइट डाउन दिस एरर करेक्टली। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास एक बाइट डेटा टाइप है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू z दी है, c की वैल्यू 102 है, i 5000 है। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू f इंटू a। दिस इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, क्योंकि हर एक का डेटा टाइप अलग अलग है, और अलग अलग डेटा टाइप को हम क्या कर रहे हैं? कॉम्प्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे भी हम करके देखेंगे। यहाँ पर पार्ट हो गया हमारा, फिर से हम उस पार्ट को कमेंट देंगे। मेन मेथड के अंदर ही है हम, मेन मेथड कहाँ एंड हो रही है? यहाँ पर, ये मेन मेथड का एंडिंग पॉइंट है, उसके अंदर है। तो एक ही प्रोग्राम कोड में अलग अलग चीजें हम करके देख सकते हैं। जो पार्ट हुआ है उसको कमेंट दे देंगे। एक बाइट ए की वैल्यू 4 है, कैर बी जेड।
जैसे एक्सप्रेशन है उस तरीके से हम उसे टाइप करके रख देते हैं, डबल रिजल्ट इक्वल टू f इंटू ए प्लस आई डिवाइड बाई बी। बेस्ट प्रैक्टिस ये है इसमें कि आप करके देखो हर एक चीज़ को, क्योंकि आप नए हो इस प्रोग्रामिंग में, करके देखो आपको आउटपुट मिलेगा, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले सोचो कि आ सकता है प्रोबेबल आउटपुट, लेकिन उसके बाद करके देखो। ऑनलाइन कंपाइलर पर भी आप करके देख सकते हो। जितना प्रैक्टिस हो पाएगा उतने करने की कोशिश करो, और उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट किया है। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया आपको, मतलब ये अलग अलग डेटा टाइप होके भी ये कंप्यूट कर रहा है। फाइनल आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है बात की बात है, आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो क्योंकि ये सारे डेटा टाइप जो भी है वो एक ही तरह के हैं। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, फ्लोट, डबल, ये एक तरीके के है कि जहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज आते हैं, नंबर सिस्टम के है। ठीक है, तो ये तो इजीली वर्कआउट होंगे डबल के साथ, क्योंकि बाइट से शॉर्ट बढ़ा है, शॉर्ट से आईएनटी बढ़ा है, आईएनटी से फ्लोट बढ़ा है, और फ्लोट से डबल बढ़ा है। तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो डबल में ले रहे हैं, तो ये सारे डेटा टाइप उसके साथ कॉम्पेटिबल है। प्रॉब्लम आएगी केवल कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर की प्रॉब्लम आएगी। कैरेक्टर ये न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है, लेकिन जब हम कैरेक्टर यूज करते हैं, ये याद रखो, जब हम कैरेक्टर यूज करते हैं तो कैरेक्टर का आस्की कोड रहता है, ये आस्की कोड लिया जाता है, एक्चुअल कैरेक्टर नहीं लिया जाता है। जब आप कैर बी इक्वल टू सिंगल कोटेशन जेड लेते हो, इसका मतलब इसका जो आस्की वैल्यू रहेगा, लोअर केस कैरेक्टर जेड का आस्की वैल्यू होगा जो नंबर रहता है एक। ठीक है, तो यदि आप अपर केस ए देखोगे तो उसका आस्की वैल्यू है 65, लोअर केस ए देखोगे तो उसका आस्की वैल्यू है 97, उसके बाद 26 अब तक आप जाओ, आपको पता चलेगा। तो 96 के बाद, 97 के बाद 26 डिजिट जो होगा वो क्या होगा, आपका जेड होगा। 97 के बाद 26 डिजिट ये आपका जेड होगा। सो दैट इज वन, प्रोबेबली इट इज 122। चेक इट वंस, 122 क्या होगा आपका, लोअर केस जेड की वैल्यू होगी। और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, मतलब आस्की वैल्यू होती है, ये वैल्यू को इस कंप्यूटेशन में यूज किया जाता है। तो अब सारे वेरिएबल्स नंबर है, और जो भी रिजल्ट मिल रहा है तो एक डबल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हम यहाँ पर डबल वेरिएबल ना लेके कोई छोटा वेरिएबल लेते, छोटे डेटा टाइप वाला वेरिएबल लेते, डबल ना लेके, लेट अस सपोज हम इंटीजर लेते, देख लो क्या हो रहा है। यहाँ पर डबल के बदले आप इंटीजर वेरिएबल लेते और उसे कंपाइल एंड रन करते, देख लो क्या प्रॉब्लम आती है। क्या आया देखो, इनकॉम्पेटिबल, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि ये सारे जो वेरिएबल्स है यहाँ पर, उसमें से कुछ वेरिएबल शॉर्ट है, कुछ इंट है, कुछ फ्लोट है, कुछ कैर है। जो भी कंपटीशन आएगा उसका जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से आता है, 15 पॉइंट सम वैल्यू। तो ये इस जहाँ पर एक इंटीग्रल पार्ट भी होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, तो एक डबल वैल्यू आती है। और उस डबल वैल्यू को आप यदि इंटीग्रल वैल्यू में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या आएगा, आपका कन्वर्जन का प्रॉब्लम आएगा, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू आईएनटी। तो यहाँ पर यदि इंटीजर रख के कुछ काम नहीं चलेगा, आपको क्या रखना पड़ेगा, डबल रखना पड़ेगा। और यदि डबल रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगी, आपको क्या मिलेगा, फाइनल आउटपुट मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। So in this way, try to execute the codes, okay, so that you will have a mastery over it. तो एग्जीक्यूट करके देखो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कुछ रेफरेंसेस दिए वो देख लो आप। इसके साथ हमने और एक चीज देखी थी आज के डिस्कशन में, वो था वाइल लूप। वाइल लूप का एक बार देख लेते हैं और हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ये टाइप कास्टिंग के पार्ट 1 पार्ट 2 भी आप पढ़ के रखो, ये कंपलसरी में नहीं है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है।
लेकिन आपको पता चलेगा, पता चला है आप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है। एक बार देख लो, उसका भी एग्जाम्पल एक कोड आपके पीडीएफ में दिया गया है, उसे रिफर कर दो। ठीक है, सो दिस इज द कोड, अच्छा दिस इज द प्रोग्राम और प्रैक्टिकल आउटकम फॉर अ व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो व्हाइल डू व्हाइल क्या होता है, उसका सिंटैक्स दिया है। व्हाइल इस तरह से काम करता है, डू व्हाइल कैसे काम करता है आपको पता है, सी में देखा है आपने। ये डू व्हाइल हमने यूज किया था डेटा स्ट्रक्चर में, बहुत बार यूज किया था, आपको याद होगा कि हम अलग अलग ऑप्शन एग्जीक्यूट करते थे तब हम डू व्हाइल यूज करते थे। क्योंकि क्या क्यों करते थे हम, हमें हमेशा एक बार एग्जीक्यूट करना ही था, एक बार तो करना ही है, बाद में बाहर निकलते समय फिर से करना या नहीं करना, इसके लिए हमें चेक करना है। तो एक बार करना है मतलब एक बार आपने स्टैक के लिए काम किया, फिर से यदि आपको स्टैक बनाना है तो आप वहां पर एक कंडीशन देते थे, पूछते थे। या एक बार आपने बाइनरी सर्च कर लिया, फिर से यदि करना है तो वहां पर आप एक क्या करते थे, एक प्रोविजन देते थे यूजर के लिए, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू। यूजर ने यदि यस बोला तो कंटिन्यू करते थे, नो बोला तो आप स्टॉप करते थे। तो वहां पर हमने डू वाइल लूप यूज किया था। तो डू वाइल पर हमने बहुत काम किया है इसके अंदर। सेम डू वाइल है यहाँ पर भी, ये लॉजिक भी उसका सेम है। यहाँ पर क्या आता है, बुलियन एक्सप्रेशन आता है। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन आती है, यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन, हेंस इट इज यस और नो, वाई और नॉट, ट्रू और फॉल्स आएगा। तो आप एक प्रोग्राम आपको डेवलप करना है लॉजिकल ऑपरेटर्स का बाय यूजिंग अ डू व्हाइल लूप। आपके जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है उसके अंदर ये कोड है, आप उसे रिफर कर सकते हो। देन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, एग्जिट कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल, ऑल दिस पॉइंट्स आर देयर। पीडीएफ में ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख लो। कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो पीडीएफ है उसके अंदर ये सब दिया गया है। डू व्हाइल का हाफ चेक करते हैं हम एट द एंड, हाउ मेनी टाइम्स डू व्हाइल विल बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन फॉल्स। कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो डू व्हाइल कितने बार एग्जीक्यूट होता है, डू व्हाइल हमेशा एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, बाद में यदि कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हो गई तो रुक जाएगा। तो एक बार हमेशा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। सो हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम्स डू व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। और व्हाइल लूप के बारे में पूछा तो 0 टाइम्स, क्योंकि व्हाइल पहले ही कंडीशन चेक करेगा और बाद में एंट्री देगा, तो 0 टाइम। कंडीशन फॉल्स है तो 0 टाइम से एग्जीक्यूट होगा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको यदि अच्छी तरह से पढ़ा है, देखा है तो आपको पता चलेंगे। ट्राई टू गो थ्रू दिस कोड और इसका आउटपुट लिखने की कोशिश करो। कुछ डाउट्स रहेंगे तो मुझे पूछ लो बाद में, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कौन सी पीडीएफ रिफर करनी है इसके लिए, इट इज ऑलरेडी देयर इन द मटेरियल ऑल्सो। So for a control structure, this is yes, you have to refer this last PDF. The students should understand the use of control structure, looping problems, while, to while, सारा दिया है यहाँ पर। while लूप के लिए दिया है, while का एक एग्जाम्पल दिया है। हमने ऑलरेडी ये आर्मस्ट्रांग नंबर वाला कोड देखा था, ठीक है। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, 1 to 10 नंबर्स को क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक डू व्हाइल का एग्जाम्पल है, वहां पर भी हम वही चीज कर रहे हैं, 1 to 10 नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एट द एंड है। तो आपको जो कंपैरिजन के लिए या आपको क्वेश्चन लिखने के लिए जो लगता है थियरी पॉइंट्स, यहाँ पर दिए गए। ये फॉर लूप के लिए है, सबको पता है फॉर लूप। अरे के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो अरे का छोड़ दो, बाकी चीजें आप देख सकते हो। एवरीथिंग इज गिवन हियर, यू कैन गो थ्रू इट। लूप्स इन जावा, इसमें सारी चीजें दी गई। So you can refer this particular PDF for this particular topic. So here we have completed up to experiment number 10. Sorry, experiment number 9. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग तक हमने, टाइप कन्वर्जन तक हमने क्या किया, कंप्लीट किया। इम्प्लिसिट भी हमने देखे हैं, लेकिन इम्प्लिसिट मैंडेटरी में नहीं है। आपको एग्जाम्पल तो मैंने वो भी बताया है,
है, वो भी आप एग्जाम्पल देख लो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 एक्सपेरिमेंट के बाद आउटकम के बाद आप 9th आउटकम लिखोगे, ये दोनों स्किप करोगे। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी पार्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड करके लेना है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है इन योर मैनुअल्स। Okay. Next time we start from experiment number 10, that is regarding the constructor, and then different types are there. Thank you for watching this session. Have a nice day.